Hello dear learners, welcome back to Abid Shiksha. Today's daily news capsule is brought to you by Abid Shiksha. So let us begin. आज की जो important articles है, first and the most important one is youngest world chess championship. D. Gukesh became the youngest world chess champions, beating Ding Liren, the former world chess champion, and he became the world champion, chess champion at a very young age. So this is a great news, and it is a news that needs to be covered, and very important. It is a news. Second is union cabinet approved bill on simultaneous polls. I think GS2 के लिए absolute importance अगर देना है आपको, then you should give to simultaneous polls because maximum chances of coming is of this topic. ठीक है. थर्ड इज हेमा पैनल. हेमा पैनल के बारे में आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा. इट इज़ अ पैनल दैट वाज क्रिएटेड अंडर द लीडरशिप ऑफ जस्टिस के हेमा. तो उनके लीडरशिप में ये पैनल बनाया गया था. ये क्या से एसोसिएटेड है? इट इज़ एसोसिएटेड विद द कास्टिंग काउच का जो इशू रहता है इन फिल्म इंडस्ट्री, तो उसके रिलेटेड मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में बेसिकली ये जो कास्टिंग काउच का जो इशू रहता है उसके लिए ये हेमा पैनल का क्रिएशन हुआ था. तो ये तीनों न्यूज़ आज के इंपॉर्टेंट है. एक एक करके तीनों न्यूज़ को डाइसेक्ट करके समझते हैं. ठीक है. You can look at this picture. This picture speaks volumes as the young boy, the young lad of India, D. Gukesh, became the world chess championship, beating Ding Liren. You can feel this picture, right? The way he is, enjoying he is not even sure about this moment. Yes, the time has come, and he always wanted to be the youngest chess championship, and he is the chess champion of the world right now. So this is a victory that would be celebrated for ages and ages. We remember how Vishy Anand, when he became the world championship, every Indian celebrated it, and it was a pioneer movement for every Indian because of when Vishy Anand won the world championship, he brought a wave of chess in India, right? तो जैसे ही वो बने वर्ल्ड चैंपियनशिप, जैसे वो वर्ल्ड चैंपियन बने थे, एक बहुत बड़ा लहर एक आया था आपके चेस खेलने का. एंड उसी के साथ आज टॉप 100 ग्रैंड मास्टर्स में वेरियस न्यूमरस ग्रैंड मास्टर्स आर फ्रॉम इंडिया, बी इट विदित गुजराती और प्रज्ञानंदा और गुकेश और many other people, अर्जुन एरगैसी. देर आर वेरियस प्लेयर्स जो चेस के ग्रैंड मास्टर्स हैं, एंड उनमें से एक वर्ल्ड चैंपियन भी बन गया है डी गुकेश. सो it shows the constant efforts that has been put by the Indian from the Indian side, especially under the guidance of Sir Vishy Anand. तो यहाँ पर आप देख सकेंगे, and this is a picture that would be celebrated for ages and ages because records has been broken down, and many records, those were held by Gary Kasparov and Ding Liren for that matter, and Vishy Anand. सबके रिकॉर्ड्स यहाँ पे टूटे हैं. तो यहाँ पर हम न्यूज़ देखते हैं. हिस्ट्री was made in the small island of Sentosa. सेंटोसा इज़ इन सिंगापुर में वर्ल्ड चेस चैम्पियनशिप जो है चल रहा था कि यहाँ पर यंगेस्ट वर्ल्ड चैम्पियनशिप जो है चेस चैम्पियन जो है वो डी गुकेश के रूप में आए हैं, डिफीटिंग डिंग लिरन ऑफ चाइना के डिंग लिरन को इन्होंने हराया. एंड डिंग लिरन वाज द करंट वर्ल्ड चेस चैम्पियन, एंड उन्होंने उनको हराया है. 18-year-old from Chennai broke the record held by Russian Garry Kasparov for nearly 4 decades. 4 decades, 40 साल से गैरी कैस्परोव के पास ये यंगेस्ट का टाइटल था, बट नाउ the record has been broken. With his victory against defending champion, Ding Liren was the world champion, which came after 58 move. Gukesh took his points tally to 7.5. तो 7.5 and 6.5 का जो है 15 मैचेस का ये गेम हुआ था, उसमें से 7.5 पॉइंट्स वाज विद गुकेश एंड 6.5 पॉइंट्स विद डिंग लिरन. ठीक है. तो ही बिकेम द वर्ल्ड चैम्पियन एंड ही टुक द वर्ल्ड टाइटल. द गेम वाज हेडिंग टुवर्ड्स अ ड्रॉ इन फैक्ट, बट अंटिल डिंग मेड अ फेटल एरर इन द 55th मूव. जब उन्होंने, अगर आप लोग देखेंगे chessbase.india.com के, अगर आप वेबसाइट पे जाएंगे, यू वुड सी द मूव कि कैसे रूकी को मूव किया गया था. तो यू वुड सी द फेटल मूव दैट ही टुक, बट इट वाज अ ड्रॉ काइंड ऑफ अ मैच ओनली, बट one error move made by Ding Liren led to this victory. So there was no coming back for Chinese grandmaster after
that because it was a error, ठीक है, error, but it was a great match to be watched, ठीक है. This was the first ever world championship match contested by 2 Asian players. दोनों ही एशियन कंट्रीज के प्लेयर्स थे, ठीक है, दोनों ही एशियन थे एंड पहली बार ऐसा हुआ था कि दोनों ही एशियन थे और दोनों ही इस चैम्पियनशिप के लिए दे वर फाइटिंग फॉर दी प्लेस. गुकेश इज द ओनली थर्ड एशियन टू विन द वर्ल्ड चैम्पियनशिप आफ्टर विश्वनाथन आनंद. उस पहले विश्वनाथन आनंद थे, उसके बाद डिंग लिरेन एंड नाउ गुकेश इज द थर्ड एशियन, ओनली थर्ड एशियन जिसने ये टाइटल जीता है. 18-year-old डी गुकेश हैज मेड द हिस्ट्री बाय बिकमिंग 18th वर्ल्ड chess champion, which will make him the youngest to do so, and emulating the doyen of Indian chess, Vishwanathan Anand, the only other Indian to achieve the honor. तो ये क्या है? It is a very interesting, very important and interesting win that we have gone because India gave chess to the world. We were the pioneers of chess. Chess was created in this very country जहाँ पर हम रह रहे हैं एंड यहाँ के ग्रैंड मास्टर्स अगर बनते हैं तो आप समझिए कितना ये खुशी का बात है. वी सेलिब्रेट इफ वी विन अ वर्ल्ड कप इन दी क्रिकेट. अगर हम सेलिब्रेट करते हैं, ओलंपिक्स में मेडल आता है तो हम सेलिब्रेट करते हैं. उसी तरीके से एक सेलिब्रेशन आपको देखने को मिलेगा. जैसे ही गुकेश चेस के जो चैंपियन बने तो उसका सेलिब्रेशन भी उतना ही इमेंस है, उतना ही हम बड़े तरीके से सेलिब्रेट करें जितने बड़े तरीके से हम विराट कोहली के विन को सेलिब्रेट करते हैं और उतने ही बड़ी तरीके से हम सेलिब्रेट करें जितना हमने नीरज चोपड़ा के विन को सेलिब्रेट किया था. एंड सिमिलर एक पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है कि जब हम गुकेश के विन को भी सेलिब्रेट करें. सो दिस इज समथिंग गेम्स का डाइवर्सिफिकेशन भी आपको देखने को मिलेगा एंड आई एम प्रिटी श्योर अबाउट दैट कि चेस का जो गेम का जो पूरा एरा है वो अभी हम जो है रेवोल्यूशन लेकर आएंगे चेस के पूरे खेल में एंड मोर इंडियंस विल प्ले द गेम ऑफ चेस. Hopefully this will bring the momentum and the pace that we always needed after Vishwanathan Anand's win. This is the second win, ठीक है. तो this is important news. आपको याद रखना है डी गुकेश is the new chess champion. He took the world title. The Chennai-born grandmaster, mental toughness and wisdom beyond his age have been his calling card. His steady rise was due to dedication and accelerated path to glory, which was done by his seconds. Gukesh revealed the names of only after match. Besides the mentoring by GM Anand's वेस्ट ब्रिज आनंद चेस एकेडमी. तो ग्रैंड मास्टर आनंद का जो है उनके वेस्ट ब्रिज आनंद चेस एकेडमी जो है चेन्नई में, वहाँ पर उन्होंने भी गुकेश ने भी ये सीखा था. गुकेश बिकमिंग द वर्ल्ड चैंपियन वुड ऑल्सो मोटिवेट हिज इंडियन कॉम्पैट्रियट्स एंड विल एड अ फिलिप to the growth of modern chess as a sport and vocation of the country of its birth. ठीक है, तो ये इसी की वजह से जो हमने डिस्कस किया कि बहुत सारे लोग जो है चेस और खेलना शुरू करेंगे विद दिस विक्ट्री. ठीक है, बहुत बड़ा ये हमारे लिए विक्ट्री रहा है. नेक्स्ट इज यूनियन कैबिनेट अप्रूव्स बिल ऑन साइमल्टेनियस पोल्स. साइमल्टेनियस इलेक्शंस आपको हमने बहुत बार डिस्कस किया अबाउट द रामनाथ कोविंद कमेटी जो कि बनाया गया है आपके साइमल्टेनियस पोल्स को लेकर. रामनाथ कोविंद कमेटी, श्री रामनाथ कोविंद, ही वॉज द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. उनके नेतृत्व में ये कमेटी बनाया गया था जो कि साइमल्टेनियस पोल्स को चेक करा था कि इज इट फीजिबल इन द कंट्री एंड उनका ये कहना था कि yes it is feasible and it can be done in the country. It will save a lot of money, it will save a lot of manpowers and it will elections in itself is a very big of a thing that इंडिया जो है क्योंकि इट इज़ द मदर ऑफ द डेमोक्रेसी एंड बहुत बड़ा देश है. तो क्या होता है कि जब इलेक्शंस होते हैं तो इलेक्शंस में बहुत ज़्यादा मैन पावर, बहुत सारा पैसा, बहुत सारा रिसोर्सेज खर्चा हो जाता है एंड इट हैज़ अ ह्यूज बर्डन ऑन द इकोनॉमिक्स ऑफ इंडिया. बहुत ज़्यादा पैसा सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कराने में ही चला जाता है. एंड एज अ रिपोर्ट लास्ट 30 years से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज़ बीन कॉन्स्टेंटली कंडक्टिंग इलेक्शन इन वन स्टेट्स और दी अदर, या फिर आपका जो मेन जो आपके मेजर जो द सेंट्रल इलेक्शंस जो है वो उसके साथ साथ बाकी स्टेट्स में भी पिछले 30 साल से हर साल कंडक्ट करवा रहे. एवरी ईयर जो है कोई ना कोई साल कोई ना कोई स्टेट्स का इलेक्शंस ज़रूर होता है. तो इसकी वजह से इट एड्स एन अ बर्डन ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर ये एक्स्ट्रा एड ऑन बर्डन हो जाता है. इसकी वजह से कई सौ
रुपए जो है खर्च हो जाते हैं, बहुत सारा अमाउंट यहाँ पे खर्चा होता है, क्योंकि बहुत सारा डिप्लॉयमेंट होता है, बहुत सारे टीचर्स एंगेज रहते हैं, बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटर्स एंगेज रहते हैं, कोई नया प्लान जो है, कोई नया स्कीम गवर्नमेंट अनाउंस नहीं कर पाती, इट काइंड ऑफ मेक्स अ हॉल्ट। एंड हर साल होने के कारण क्या होता है कि हर साल इलेक्शन हो रहा होता है, हमें हर साल न्यूज़ में आता है, लाइक दिस 2024 में हमारे सेंट्रल इलेक्शंस हुए, उसके बाद महाराष्ट्र इलेक्शंस एंड देन दी झारखंड इलेक्शन। तो इलेक्शंस के ऊपर इलेक्शंस होता है। 2025 में कोई और स्टेट में इलेक्शन होगा, 2026 में हमारे स्टेट में इलेक्शंस है, असम में ही। तो बहुत सारे इलेक्शंस के ऊपर इलेक्शंस के ऊपर इलेक्शंस जो है वो कंडक्ट किया जाता है, एंड इट हैज़ अ वेरी बिग इम्पैक्ट ऑन द स्टेट ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ द कंट्री। तो इसीलिए साइमल्टेनियस इलेक्शंस का जो ये प्रस्ताव है इसको लाया गया था, ठीक है। तो लेट अस लुक एट द न्यूज़। द यूनियन कैबिनेट ऑन थर्सडे अप्रूव्ड 2 बिल्स। 2 बिल्स को अप्रूवल मिला है, अभी अप्रूवल ही हुआ है, पास नहीं हुआ है बिल, ठीक है। 2 बिल अप्रूव हुआ है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शन टू द लोकसभा एंड द असेंबलीज, पेविंग द वे टू इंट्रोड्यूस द ड्राफ्ट लेजिस्लेशन इन द पार्लियामेंट ऑन द ऑनगोइंग विंटर सेशन। इसी सत्र में, जो हमारा शीत सत्र है जिसको हम कहते हैं, या फिर विंटर सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, यहीं पे हम 2 बिल को टेबल करेंगे, जिसमें एक जो होगा वो लोकसभा इलेक्शंस एंड साथ ही साथ हमारे लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस को एक साथ करवाएंगे। आई वुड गिव यू अ जिस्ट ऑफ हाउ इट इज गोइंग टू वर्क, ठीक है। एक जिस्ट आपको दूंगी, जैसे दिस इज अ स्टेट ऑफ लेट्स से असम ओनली, ठीक है। असम का स्टेट का इलेक्शन है। साइमल्टेनियस इलेक्शन का ये मतलब नहीं है कि आज ही असम में इलेक्शन होगा, आज ही मेघालय में होगा, आज ही मिजोरम में होगा, आज ही त्रिपुरा, ऐसे नहीं है। पूरे देश का एक साथ नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, अगर असम के कोई एक कैंडिडेट, अगर असम के एक वोटर है, लेट्स से आई एम दी वोटर इन द स्टेट ऑफ असम, मैं असम में स्टेट की वोटर हूँ, तो मैं क्या करूँगी, अगर मेरे स्टेट में इलेक्शंस है, तो मेरे स्टेट में इलेक्शंस होने के कारण क्या होगा कि आई वुड गो टू दी वोटिंग पोल, ठीक है। मैं पोल के पास जाऊँगी, वहाँ पर आई वुड हैव 2 बैलेट्स near me, 2 EVM near me, wherein one will be regarding your central elections and the would be for state legislative assembly का election. I would go and on the same day only I would give my vote for central elections and I would give my vote to state elections also. तो मैं वोट करूंगी सेंट्रल इलेक्शंस के लिए भी और स्टेट इलेक्शंस के लिए, मतलब यूनियन के लिए भी स्टेट इलेक्शंस, मतलब यूनियन के लिए भी वोट देके आऊंगी और स्टेट के लिए भी वोट देके आऊंगी, मतलब लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों के लिए मैं एक ही साथ वोट देकर आऊंगी। दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट दैट हैज बीन गिवन इन दी साइमल्टेनियस इलेक्शंस, ठीक है। साइमल्टेनियस इलेक्शंस में ये बोला गया। One of the bill to amend Constitution of India to implement simultaneous elections, while other is to amend the provisions laws dealing with union territories that have legislative assemblies to align their terms with other legislative assemblies. तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि साइमल्टेनियस इलेक्शंस के लिए 2 बिल लाया जाएगा, एक जो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करेगा जो नॉर्मल स्टेट्स के लिए, और दूसरा बिल लाएगा जो अमेंडमेंट करेगा इन दी यूनियन टेरिटरीज। द बिल डेवलपमेंट इवोक्ड शार्प रिस्पॉन्स फ्रॉम चीफ मिनिस्टर्स ऑफ तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, हु कॉल्ड द ड्राफ्ट एन अटैक ऑन डेमोक्रेसी एंड फेडरलिज्म। यहाँ पर क्योंकि ऑब्वियसली इफ यू सी द ड्रॉबैक्स क्या रहेगा कि आप फेडरल जो स्ट्रक्चर है उसको तो थोड़ा बहुत हिला ही रहे, साथ ही यहाँ पर क्या है, इफ आई गो, अगर एक वोटर है, ठीक है, ज़्यादा उनको वोटर लिटरेसी के बारे में जो है उनके आइडिया नहीं है, ही वुड गो एंड वोट एनी ऑफ द पर्सन इन द सेंटर। उन्होंने अगर सेंटर का कोई एक बड़े पार्टी का नाम सुना है, ही वुड गो एंड वोट देयर। उनको बस सेंटर के एक बड़े पार्टी का नाम पता है, उनको ये भी नहीं पता है कि स्टेट में कैंडिडेट कौन है या फिर उनका कॉन्स्टिट्यूएंसी का कैंडिडेट कौन है, बस उनको ये पता है कि ये उनका सिंबल है एंड वी हैव टू गो एंड प्लेस माई वोट। सो ये क्या वोटर्स के बिहाफ में क्या ये सही तरीके से हम क्या ये कर रहे हैं, कंडक्ट कर रहे हैं, बिकॉज वी डोंट नो कि सेंट्रल जो है, सेंटर में हमारे इस पार्टी से XYZ पार्टी से कौन सा कैंडिडेट जा रहा है, बस हमें ये पता है कि XYZ पार्टी का आदमी है। तो ये क्या है, काइंड ऑफ एक नेशनल टिल्ट के टुवर्ड्स ये एक फेवर है, ठीक है। एक नेशनल जो पार्टी है उनके लिए ये एक फेवर हो जाएगा, क्योंकि एक इंसान जिनके पास उतना वोटर लिटरेसी नहीं है, ही वुड गो एंड उनको पता नहीं है कि मैनिफेस्टो क्या है उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी का, उनके जो लीडर है उनका क्या मैनिफेस्टो है, उनको ये नहीं पता रहेगा। वो जाएंगे पार्टी को देखेंगे, अच्छा ये सिंबल है, वोट दे देंगे। सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसे होगा। तो यहाँ पर वो जो कंसिस्टेंसी है वो हमें देखने को नहीं मिलेगा। और साथ ही यहाँ पर क्या होगा, जो स्टेट के जो रीजनल पार्टीज है, क्योंकि रीजनल पार्टीज जैसे हमारे स्टेट में AGP, राइट, AGP इज अ रीजनल पार्टी, तृणमूल कांग्रेस इन वेस्ट बंगाल इज अ रीजनल पार्टी, राइट।
सो ये सब क्या है, रीजनल पार्टीज बिकॉज दे नो दी सिचुएशन, ये इनको ग्राउंड रूट रियलिटी पता है कि ये प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, इसीलिए रीजनल स्टेट जो रीजनल पार्टीज है उनका इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, बिकॉज दे नो द इशू, डीएमके दे नो द इशू ऑफ योर तमिलनाडु, असम गण परिषद नो द इश्यूज ऑफ असम, राइट। तो वैसे ही जो रीजनल पार्टीज है, एनडीपी ऑफ नागालैंड, तो जो रीजनल पार्टीज है वो उनको पता रहता है कि यहाँ पर क्या पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स है, तो वो रीजनल पार्टीज के लिए बहुत ज़्यादा एक ड्रॉबैक रहेगा, क्योंकि उनको तो क्योंकि लोग जाएंगे मेन लीडर, जो मेन बड़े जो नेशनल लेवल के पार्टीज है उनको तो ये वोट दे देंगे, यहाँ स्टेट लेवल में क्या करेंगे ये किसी को उतना श्योर नहीं है, तो इसकी वजह से बहुत इश्यूज हो सकते हैं। तो ये काइंड ऑफ एक बड़ा इशू है स्पेशली फॉर रीजनल पार्टीज। फॉर नाउ द कैबिनेट हैज गिवन इट्स अप्रूवल फॉर द ड्राफ्ट लेजिस्लेशन के लिए उन्होंने अप्रूवल दिया है फॉर साइमल्टेनियस पोल्स इन लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली। द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल टू होल्ड साइमल्टेनियस पोल will not require to be ratified at least 50% of the states, the sources say. You will let me know कि ये जो है कौन सा अमेंडमेंट है, जब आपको 50% ऑफ द स्टेट्स चाहिए होता है, जब आप कोई कॉन्स्टिट्यूशनल फिगर फेडरलिज्म को अगर आप मूव कर रहे हैं, देन यू विल नीड स्पेशल मेजॉरिटी इन द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, आपको स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होगा, और 50% ऑफ द स्टेट शुड रेटिफाई विथ सिंपल मेजॉरिटी। दिस इज योर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट का ये पार्ट है। लेकिन यहाँ पर जो साइमल्टेनियस बिल्स पास होगा साइमल्टेनियस इलेक्शन का, इट वोंट नीड 50% का रेटिफिकेशन, इसीलिए यहाँ पर क्या बोला गया है, क्योंकि ये जो आप इलेक्शंस करवा रहे हैं फेडरल स्ट्रक्चर को मूव करेगा ना, तो इसीलिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि आप अगर हमसे रेटिफाई भी नहीं करवा रहे, 50% ऑफ द स्टेट्स का रेटिफिकेशन भी नहीं मांग रहे, इसीलिए इट इज द डेथ अटैक ऑन डेमोक्रेसी एंड फेडरलिज्म के रूप में इसको कहा जा रहा है, क्योंकि आप जो है हमें ये रेटिफाई करने का भी मौका नहीं दे रहे। हाई लेवल कमिटी सेटअप किया गया था अंडर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद हैड आल्सो रिकमेंडेड होल्डिंग साइमल्टेनियस पोल्स फॉर टू म्यूनिसिपैलिटी एंड पंचायत, बट द कैबिनेट हैड डिसाइडेड नॉट टू गेट इनटू द इशू ऑफ सिंक्रोनाइजिंग लोकल बॉडी पोल्स। तो कोविंद कमिटी ने तो ये भी बोला था कि हमें पोल्स को भी हमारे जो म्यूनसिपैलिटी है, अर्बन लोकल एंड रूरल लोकल जो गवर्नमेंट है, उनको भी सिंक्रोनाइज कर देना चाहिए, लेकिन अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने वो नहीं सोचा है, बस जो स्टेट लोकसभा एंड जो हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली है उन्हीं को हम एक साथ सिंक्रोनाइज करेंगे। दिस वुड नॉट ओनली रिक्वायर द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट टू इंसर्ट अ न्यू आर्टिकल 324A, but also ratification of half of the also it needs the ratification of half of the assemblies, ठीक है, 50% of the states का इसमें ratification चाहिए ही होगा। साइमल्टेनियस इलेक्शन इसीलिए ये होगा, लेकिन यहाँ पर न्यूज़ क्या है कि ऐसे रेटिफिकेशन नहीं चाहिए होगा, ऐसे सोर्सेस कह रहे हैं, तो इसीलिए, बट यहाँ पर अगर आपको इस बिल को अमेंड करना है यू विल नीड द रेटिफिकेशन ऑफ 50% ऑफ द स्टेट, लेकिन सोर्सेस क्या कह रहे हैं कि इट विल नॉट रिक्वायर टू बी रेटिफाइड, जबकि आपको रेटिफाई करवाना चाहिए, पर आप यहाँ पर क्या ऐसे रूमर्स आ रहे हैं कि रेटिफाई में भी ना करवाने दिया जाए, तो क्या होगा, मेजॉरिटी जो है आप देखेंगे कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो सरकार है उनके पास मेजॉरिटी रह जाएगा, तो फिर वो ऑब्वियसली इसको पास करवा देंगे, बट यू नीड एटलीस्ट 50% ऑफ द रेटिफिकेशन बाय द असेंबली, जो कि सिंपल मेजॉरिटी में पास होगा, ठीक है। Simultaneous elections known as one nation one elections means holding elections to the house of people, all the state assemblies and local bodies, that is municipalities and panchayats together, ठीक है, सबको लेकिन सबको एक साथ इलेक्शंस होना, लेकिन यहाँ पर सारे एक साथ नहीं होंगे, बस अभी फिलहाल के लिए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड हाउस ऑफ द पीपल, दैट इज लोकसभा का इलेक्शन होगा। Simultaneous election do not mean that voting across the country for elections happen on a single day, ऐसा नहीं है कि मैंने जैसे आपको समझाया कि आसाम में अगर वोटिंग हो रहा है, आसाम के पीपल विल गो वोट फॉर द सेंट्रल एंड फॉर द स्टेट, they would go and vote for the center and for the states. In India simultaneous elections ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है, 1951, 52 में, 57 में, 62 और 67 में एक साथ simultaneous elections जो है वो हुए थे। साइकिल कब डिसरप्ट हुआ था, जब प्री मेच्योर डिसोल्यूशन हो गया था, इंदिरा गांधी का जो सरकार आया था, जब उस समय जो प्री मेच्योर डिसोल्यूशन हुआ था, उस समय के बाद से ये डिसरप्शन जो है हमें देखने को मिला था, ठीक है। तो वी कैन मूव टू द लास्ट न्यूज़ ऑफ द डे। द लास्ट न्यूज़ ऑफ द डे इज हेमा पैनल, ठीक है, अबाउट हेमा पैनल। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि विमेन मतलब
उन वुमेन का भी बात सुनेंगे जो कि जिनको प्रोसिक्यूशन नहीं चाहिए। तो यहाँ पर हेमा पैनल के बारे में डिस्कस हुआ है। जस्टिस हेमा कमेटी जो है क्या बोला उन्होंने, उनको वो एक वेटरन एक्ट्रेस शारदा एंड वन IAS ऑफिसर के अंतर्गत ये एक कमेटी का गठन हुआ था, हेमा कमेटी, जस्टिस हेमा कमेटी। जस्टिस हेमा कमेटी का काम क्या था कि जो मलयालम, पर्टिकुलरली मलयालम जो फिल्म इंडस्ट्री है वहाँ पर बहुत सारे सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन जो है वो विमेन जो आर्टिस्ट है उनका होता था, इसीलिए जस्टिस हेमा कमेटी को सेटअप किया गया था स्पेशली फॉर मलयालम फिल्म इंडस्ट्री। ठीक है, यहाँ पर जो इशू है उसके लिए ये हेमा कमेटी को बनाया गया था। राइट्स, जो विमेन का राइट्स था उनको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे एक्सप्लॉयट किया गया था। 5 साल पहले ये रिपोर्ट का जो है सबमिट किया गया था केरला गवर्नमेंट को, केरला के सरकार को ये रिपोर्ट जो है सबमिट किया गया था। The committee identified at least 17 forms of exploitation experienced by women working in 30 different categories within the industry. बहुत सारी कैटेगरीज है, लाइक हेयर, मेकअप, जो मतलब असिस्टेंट डायरेक्टर है, DOP है, एक्ट्रेस है, सिंगर्स है, बहुत सारे कैटेगरीज की विमेन है। 30 कैटेगरीज को मतलब वो किया गया, आइडेंटिफाई किया गया, एंड इसमें 17 फॉर्म्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन लाइक द फिजिकल एक्सप्लॉयटेशन, मे बी वर्बल एक्सप्लॉयटेशन, इमोशनल एक्सप्लॉयटेशन, इस टाइप के बहुत सारे छोटे से छोटे एंड बड़े से बड़े लेकर एक्सप्लॉयटेशन को यहाँ पर 17 टाइप के एक्सप्लॉयटेशन को यहाँ पे आइडेंटिफाई किया गया था। ठीक है, की इश्यूज यहाँ पर क्या क्या बोले थे इन दी हेमा कमेटी। हेमा कमेटी ने क्या बोला था, जैसे कास्टिंग काउच, आपने बहुत सुना होगा अबाउट कास्टिंग काउच की व्हेन यू वुड बी गिवन वर्क इफ यू नो कॉम्प्रोमाइज विद दी bigger directors or producers, you would be given work. The issue of casting couch, lack of basic amenities like washrooms, like sanitary napkins, these are basic amenities. They lack on these basic amenities, and threat against filing complaint. Anybody who goes and files a complaint, they were given threats like they would be ousted from the industry, they won't be given work by any of the directors. तो यहाँ पर बहुत सारे issues को raise यहाँ पर किया गया था। The committee confirms the rumored existence of practice of casting couch in the industry. Obviously हर इंडस्ट्री में कास्टिंग काउच होता है, पर यहाँ पर रूम कमेटी ने कंफर्म किया है, हेमा कमेटी ने ये कंफर्म किया था कि ऑब्वियसली यहाँ पर भी होता है। ठीक है, सो दिस इज द हेमा कमेटी रिपोर्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड बहुत लैंडमार्क कमेटी का जजमेंट। ये जो रिपोर्ट्स है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नॉट जस्ट मलयालम सिनेमा, एनी अदर इंडस्ट्री फॉर दैट मैटर हैज़ दिस बेसिक इशूज़ जो विमेन के अगेंस्ट होता है, एंड इन सबको लाइमलाइट में लाना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ऑल राइट, with this we have come to end of today's daily news discussion. If you have liked this discussion, don't forget to give a like and write down in the comment section. We will meet in the next discussion. Till then, take care and thank you.